کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ بھی ادا کی اور بنوں سی ایم ایچ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنوں کا دورہ، جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے 12 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ پشاور کے کور کمانڈر نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں اور ان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے پار آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ جو بھی خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے، وہ انہی کا اعلی کار ہے اور اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی ان پراکسیوں کے خلاف بنیادم مرصوص کی طرح متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعادہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین سے ماہ اگست کے بجلی کے بلوں کی وصولی سے فوری طور پر روک دیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، سیلاب زدہ علاقوں میں ماہ اگست کے بجلی بلوں کی وصولی سے روک دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کی وصولی سے فوری طور پر روک دیا اور کہا کہ جن سیلاب متاثرہ صارفین سے اگست 2025 کا بجلی کا بل وصول کیا جا چکا ہے وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ مشکل کے اس وقت میں عوام کے دکھوں میں مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ریسکیو و بحالی کے لیے وفاقی و صوبائی ادارے اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں اور جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قصور اور ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل کو بچاؤ اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کو آباد کاری اور بحالی میں مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا ملتان میں فلڈ ریلیف کیمپس کے دورے میں سیلاب
सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरा मुअस्सर इमदाद को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर मरकूज था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को जमीनी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के साथ बातचीत में फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस और अवाम पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इक़दाम को तेज किया जाए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल ने सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत सिविल मिलिट्री कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने अवामी बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरीन ने नाजुक मोड़ पर बरवक्त इमदाद पर पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने लोगों को बरवक्त इमदाद फराहम करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ उनकी 24 घंटे कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों, रेस्क्यू 1112 एहलकारों और पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के करीबी सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी दरियाए चनाब का सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिसकी तबाही से सैकड़ों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों अफराद मुतासर हुए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नोमान खान बाबर से। जी नोमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शुजाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। सूरत हाल कि बस्ती सोमन है जो कि इस वक्त सैलाब की लपेट में है, जिसमें 400 से ज़ायद मकानात हैं जो कि सैलाब में घिरे हुए हैं, और इसके साथ साथ 50,000 के करीब जो है मुतासरीन हैं जो कि महफूज मकामात पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो है 70 से 80% लोग जो है अपनी मदद आपके तहत घर छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ताहाल कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए। सूरत हाल कि जो मुतासरीन हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त बंद पर मौजूद है। इसी तरह से अजीज़ो कारिब के घर जा रहे हैं, जहाँ पर रातें गुजारना यहाँ पर मुसलसल जो है मुश्किल होता जा रहा है। इसी हवाले से मुतासरीन ने एहतजाज भी किया, मुतालबा किया कि हुकूमत जो है सारी सूरत हाल का नोटिस दे, क्योंकि हुकूमत का काम है वसाइल फराहम करना। तो यहाँ पर जो है न सिर्फ जो लोग, जो ख़वातीन, बच्चे मौजूद हैं, उनको कैंप फराहम किए जाएँ, उसके साथ साथ खाने के हवाले से भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि उनकी मसाइल जो है किसी हद तक कम हो सकें। जी। शुजाबाद के सैलाब मुतासरीन बेहाल, कहते हैं कि दिन को सूरज की गर्मी और रात को मच्छरों ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। बस्ती रुकनहट्टी के मुतासरीन का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कैंप्स ना होने से रातें गुजारना मुश्किल है। खाने के चीज़ है न, यानी के ऊपर रात वाले सामने मच्छर बैठे हैं। मच्छर जो दूजा है हालात है, ना कोई कैंप मिले, रात दे मच्छर नींद था कोई धूप खांदी है। यहाँ कोई सहूलियात नहीं है, बच्चे देख रहे हो गर्मी में बैठे हैं, ठीक है। इधर कोई भी तरीकाकार नहीं है, ना कोई यहाँ पूछने वाला है ना हमें पूछने आ रहे हैं। यहाँ MNA सब गायब हैं। सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है हमारे घर में, घर हमारे बह चुके हैं, ना कोई पानी मिलने को मिल रहा है, ना कोई खाना पीना मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना हमारी कोई देखभाल करने आ रहा है। जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो भी MNA MP हैं, सब कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे साथ। इधर बान पे बैठे हैं, रास्ता भी नहीं है, पीछे की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, और हमारे डंगर भी भूखे हैं। ना हमारे पास जानवर को कुछ खाने के लिए बचा, ना हमारे घर बच्चे, कुछ भी नहीं बचा। पूरी बस्ती यहाँ पे मौजूद है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना हमें खाने के लिए कुछ मिला जा रहा है, ना कोई हम जानवरों के चारे के लिए कुछ मिला जा रहा है। हम ऐसी बस बेबस अपनी मदद हम खुद कर रहे हैं। दरियाई सिंध में सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। दिन भर में 20,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू और सक्खर के लिए आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम करार। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सक्खर अहकर रिजवी से। जी अहकर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे और सक्खर बराज से निकलने वाली राइस केनाल नहर के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर देखी जाए तो दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार जो कुछ रोज से जारी है यहाँ पे, और एक सैलाबी रेला आगे कोटड़ी की तरफ रवा दवा है। अब बात की जाए फिगर्स की तो यहाँ पे सक्खर बराज कंट्रोल के मुताबिक 4,72,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि डाउन स्ट्रीम में जो यानी अखराज जो हो रहा है सक्खर बराज से वो 4,22,000 क्यूसिक है। लगभग 50,000 क्यूसिक के जो है यहाँ से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है ताकि आबपाशी मकासद के लिए काम आ सके। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल इस तरह से कि यहाँ पे दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, और इसी तरह से तवक्को की जा रही है कि जैसे कि अभी मेयर सक्खर के जाने से या तर्जुमान सिंध हुकूमत मेयर सक्खर से उन्होंने बताया कि 72 घंटे इंतहाई अहम है। सक्खर
और गुड्डू बैराज के लिए, क्योंकि यहाँ से एक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा। तो लिहाजा जो है यहाँ पे तमाम इंतजामिया हरकत में आई हुई है। कैंप्स के फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम है, जबकि अलावा जो है उनके लिए जो IDPs के लिए यहाँ पर जो कैंप्स हैं लगाए गए हैं वहाँ पर भी तमाम तरह सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। तो लिहाजा जो है इंतजामिया भी तैयार है और ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी अगले 72 घंटों में मुतवक्किल है। जी, अलीपुर के इलाके खानगढ़, डोमा, लत्ती माड़ी और दीगर इलाके सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू के मसाइल और खुराक की कमी जैसे मसाइल का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ियाउल हक शहजाद। जी देखें, अलीपुर के जो सैलाबी पानी से मुतासर इलाकों हैं उनमें तकरीबन 19 मवाज़ियात के 2.5 लाख अफराद जो है इस सैलाब पानी से मुतासर हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि खानगढ़, डोमा है, लत्ती माड़ी, मौजा बाज़वाला, घलवा दोम, चौकी गबोल, ये वो इलाके हैं जो शदीद सैलाबी पानी की लपेट में हैं। इसके अलावा दीगर मुआवज़ात भी इसमें शामिल हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो खानगढ़ डोमा का इलाका है वहाँ 6 से 8 फुट तक पानी घरों में दाखिल हो चुका है, मकानात डूब चुके हैं। वहाँ पर जो मकीन हैं वो छतों पर बैठे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के हवाले से भी अगर बात की जाए तो रेस्क्यू का अमल सुस्त रवि का शिकार है। कुछ इक़दाम इंतज़ामिया ने किए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो अलीपुर के मुआवज़ात हैं वहाँ पर घरों में मैसूर है। और इसके अलावा दीगर जिन्होंने इनखला किया है वो खुले आसमान तले यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। और इसके अलावा उनके माल मवेशी जो है उन्हें इसके हवाले से चारे के मसाइल का सामना है, यहाँ पर उन्हें ग़िज़ा की किल्लत का सामना है। तो यही हुकूमत को चाहिए कि जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ और उनका जो वहाँ पर माल मवेशी है वो भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। और दीगर जो बाहर लोग बैठे हैं उनके लिए यहाँ पर टेंट और खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ।